देपो ज्योति परं ब्रह्म देपो ज्योतिर्जनार्दनः देपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते गण लो अभिनंदन हे अतिथि गण लो अभिनंदन भावंजलि दो मन विमोहन भावंजलि दो मन विमोहन स्वागत 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 हो स्वागत 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 हो हे अतिथि गण लो अभिनंदन हे अतिथि गण लो अभिनंदन भावंजलि दो मन विमोहन भावंजलि दो मन विमोहन स्वागत 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 हो स्वागत 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 हो हर्ष भरा यह उत्सव आया तुमने ही आकर मन हर्षाया हर्ष भरा यह उत्सव आया तुमने ही आकर मन हर्षाया मन में आनंद बहाया मन में आनंद बहाया भावंजलि दो मन विमोहन भावंजलि दो मन विमोहन स्वागत 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 हो स्वागत 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 हो त्रुटियां यदि कुछ होगी हमसे क्षमा करो इन्हें भुला दो मन से त्रुटियां यदि कुछ होगी हमसे क्षमा करो इन्हें भुला दो मन से आशीष दो हमें तन मन धन से आशीष दो हमें तन मन धन से भावंजलि दो मन विमोहन भावंजलि दो मन विमोहन हे अतिथि गण लो अभिनंदन हे अतिथि गण लो अभिनंदन भावंजलि दो मन विमोहन भावंजलि दो मन विमोहन स्वागत 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 हो
स्वागत स्वागत हो स्वागत 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 हो at the Vivekananda Cultural Center Auditorium, members of the Bihar Diaspora and the Indian community in Japan, members of the Bihar Foundation in Japan, government officials from the Bihar government who have joined us today. Ladies and gentlemen, a very good evening to you all. I am delighted to welcome you to today's event celebrating the Bihar Divas or Bihar Day, a day that marks the founding of the Indian state of Bihar. The Embassy of India in Tokyo has been celebrating the founding day of Indian states with great vigor and enthusiasm. It is heartening to note that there is an appreciable response and involvement of both the Indian diaspora in Japan and Friends of India in these important celebrations. In the 70 years of India-Japan diplomatic relations, Japan has emerged as India's close, reliable and natural partner. Our relations are rooted in history and tradition, and Japan and India enjoy the status of special strategic and global partnership. This partnership has expanded significantly in recent years and covers cooperation in a wide range of areas, including economic partnership. We are also building linkages between states in India and prefectures in Japan. With such mechanisms, we hope to intensify and deepen our bilateral relations further and improve people-to-people linkages. With regard to today's celebrations, Bihar is a state that is full of economic and investment opportunities. The state is known for its fertile land, which makes it one of the leading agricultural producers in India. The economy of Bihar is diverse and has a range of sectors offering significant opportunities. Food processing, dairy, sugar manufacturing, and healthcare are some of the fastest growing industries in the state of Bihar. With its large base of cost-effective industrial labor and abundant natural resources, Bihar is an ideal location for businesses from Japan looking to expand their operations in India. The cultural heritage of Bihar is also deeply rooted in its past and manifests itself in various forms of art, handicraft, festivals, and tourism and various beliefs. The state of Bihar is home to some of the most significant sites of Buddhism, including the Mahabodhi temple, Nalanda University, and the Bodhi tree where Buddha attained enlightenment. Bihar forms a very important part of the Buddhist circuit for tourism in India, and many Japanese tourists visit the state of Bihar. The investment potential, the cultural heritage and natural beauty of Bihar makes it an ideal destination for businesses and tourists alike. On this event to commemorate Bihar Day today, I invite you all to explore the various opportunities that the state has to offer and to contribute to its growth and development. I am also very happy to see and know that today the Bihar diaspora in Japan has put together this event and come together to showcase the state of Bihar in its cultural activities and make us feel the presence of Bihar in Japan. Thank you very much. वसुदेव कुटुंबकम के सद्भाव के साथ आजादी के अमृतकाल और G20 की अध्यक्षता करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्राचीन धरोहर को समाहित करता हुआ मेरा राज्य बिहार और उसकी सांस्कृतिक विरासत परंपरा को प्रदर्शित करने यहाँ मौजूद सभी भाइयों एवं बहनों का मैं नुपुर झा बिहार झारखंड एसोसिएशन एवं बिहार फाउंडेशन जापान चैप्टर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ जापान में हम सभी भारतीय प्रवासियों के सुख दुख का साथी भारतीय दूतावास, खासकर
जापान में भारत के एम्बेसडर श्री सीवी जॉर्ज जी और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन श्री मयंक जोशी जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनके सहयोग एवं सहमति से हम सभी बिहारी प्रवासी विवेकानंद कल्चरल सोसाइटी के इस विशाल ऑडिटोरियम में पहली बार बिहार दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सर। निसंदेह आने वाले दिनों में हमारी कोशिश जरूर होगी कि आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध की इस धरती से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो सके। We would also like to thank Shri Vivek Anand ji from Biada and Shri Abhijit ji from Bihar Tourism Department for your presentation and showcase the state's unique heritage, investment potential and traditions. The Bihari diaspora living in Japan can certainly play an important role in promoting investment opportunities in Bihar. We can also support the development of tourism infrastructure in Bihar and play a vital role in promoting tourism opportunities in Bihar. At the same time, as resident of Japan, we have access to a wide range of business networks, resources, and expertise. This can help build awareness and interest in Bihar as an investment destination and create a platform for business networking and collaboration. Thank you once again. अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत है राष्ट्रकवि बिहार विभूति रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी के तृतीय संसर्ग का नाट्य रूपांतरण। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और अपने अंतिम प्रयास के रूप में युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं ये मधुरमय प्रस्तुति। सावधान महारथी महावीर सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन शांति दूत वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, आप अपना स्थान ग्रहण करके मेरे राज्यसभा का मान बढ़ाइए। प्रणाम पितामह। हे वासुदेव, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने अनुज पुत्र के तरफ से क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं। हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किन्हीं की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया। मैं तो स्वयं अपनी ओर से अपना ही प्रस्ताव लेकर आया हूँ, किंतु मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा उसे पांडव सहज स्वीकार कर लेंगे। महाराज, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दीजिए। यदि युद्ध होता है महाराज, तो युद्ध के उपरांत जितने भी आंसू बहाए जाएंगे उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आप होंगे महाराज। इतिहास गांधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने द्वित क्रिया में कपट क्यों किया था। इतिहास महाराज ये भी आपसे ही पूछेगा। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरतवर्ष कुलवधु को भरी सभा में बेइज्जत क्यों किया था। इतिहास ये भी आपसे ही पूछेगा महाराज। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरतवंश कुलवधु को भरी सभा में बुलाकर वस्त्र चिरहरण क्यों किया था। इतिहास इसके लिए भी आपको ही दोषी और उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। इसलिए हे महाराज, करजोर विनती है कि आप शांति के मार्ग पर चलिए, शांति के मार्ग पर चलिए। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि युद्ध कोई नहीं चाहता पितामह, तो ये कदाचित क्यों? हाँ, कदाचित जैसे शब्दों को इस राजसभा से निकाल दीजिए महाराज। शांति की बात करते हैं और कदाचित ये कतई नहीं हो सकता। वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र दुर्योधन। इसमें सोचना क्या है पितामह? वनवास जाने की बजाय वो हमसे इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं। अपने नाद की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जिस प्रकार कुल्हाड़ी वृक्ष को काट डालती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार स्वयं उसे काट डालता है।
और ये भी तो देखो, श्री कृष्ण मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा यह कह रही कि मैं उन्हें अपना आधा राज्य दे दूं। अगर ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा के अनुचित युद्ध के लिए भड़का है, और जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा गुरुदेव। हाँ, अगर वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव है तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। यदि बात प्रस्ताव की है तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव? 5 गांव। और उन पांडवों को मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, अगर तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारे ये इन्हें बोलने दीजिए पितामह, इन्हें बोलने दीजिए। अगर तुम दूत न होते तो मेरी माता श्री के अपमान करने के कारण मैं तुम्हें कारागार में डाल देता और तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारे जीवा काट लेता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? राजदूत को, जिनके स्वागत के लिए स्वयं गंगापुत्र भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य साथ खड़े हैं। सिपाही, इस ग्वाले को बंदी बना लो। ऐसी विपत पड़ी गुइया, कछु ना समझे अजान। हो ए सैया मिले लड़कैया में का करूं, 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 सैया मिले
शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा पूर्व, विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग उठे तेरे सब। अब तू माथे का हृदय तिलक, तू आंखों